We have with us the super talented Dr. Bazga Ali Mania. ये डॉक्टर भी हैं obviously और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, which is extremely important. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे लगता है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट का डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। Very true. I think you have solid knowledge. है ना? Yes. मैं because मुझे ऐसे लगता है कि generally I think now after speaking to so many people who are in nutrition, I feel like a lot of the times they say some stuff which does not make sense and you're like and then I do feel like I think it's very important for you one to be a doctor in order to tell anybody what to eat and you know this is a healthy way to do stuff etc. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे बताएं बाज़ का lots and lots of diets that are trending जो सबसे ज़्यादा like ऊंची fast trending, पहले तो ये बताएं कि how you feel about trending diets. Yeah, these are actually fad diets and they claim to have dramatic results, which they actually do, which is very bad in the long run. The most the most popular one being the keto diet. And that's exactly the first one that I want to talk to you about. The ketogenic diet or the keto diet, मैंने ये पढ़ा था कि ये basically बनाई गई थी diabetic लोगों के लिए. So it was supposed to help diabetic people and that's how this diet came about. ये fad कैसे बना, क्यों बना, इसके बारे में कुछ बताओ। Basically keto diet क्या होता था कि long time back when anti-epilepsy drugs were not there, you know, epilepsy in children, they tested it on a group of children, this diet, to treat adamant epilepsy. And somehow, I will just explain the process of ketosis. Somehow, when the body enters into a process of ketosis, the frequency of the epileptic seizures decreased in those children. And even when the diet was discontinued, this effect lasted. Hence, it became so popular. And then, with the advent of, with the coming up of such good anticonvulsant drugs, anti-epileptic drugs, this was long forgotten. तो ये diabetic वाली story क्या है? Diabetic कभी होता है, मैं आपको बताती हूँ. इस तरह से होता है कि basically उरूज देखें, main nutrient groups जो होते हैं, one you need in balanced diets are carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals. You need all of them in a proper correct proportion so that you lead a healthy life. Now carbohydrate are the main source of energy for the body. They are the fuel providers, right? So what happens is that when you restrict carbohydrate to such a low level, like for example in keto diet you take around 70% fat, you know, to less than 10% carbohydrate and 20% protein, round that proportion. So when the carbohydrate is so drastically reduced from the diet, instead of carbohydrates being used as a source of energy, the stored fats in the body start being utilized as for fuel production. Which is what happens when you're fasting. That's when you start reducing the weight, and that kicks the body in that state when the fat is being utilized for energy source rather than carbohydrate. That state is called ketosis. You know, the body comes in a state of ketosis where the fat is being broken down and you start losing weight. And also carbohydrate retains water naturally. हाँ, सबसे पहले water weight जाता है. So basically immediately जब water weight reduce होता है तो वो water weight होता है, क्योंकि आपका carbohydrate इतना कम है तो retention नहीं हो रहा, तो increase urination हो रहा है, ये सब हो रहा है. But in the long run, now see, carbohydrate क्या करता है आपकी body में? For example, a good source of carbohydrates is like something like brown bread maybe. So what happens is that when you take carbohydrate and it is rich in fiber, now fiber क्या करता है जब आपकी body में जाता है in the digestive tract, fiber makes kind of a bolus with water and makes the process of digestion slow down. Do you get it? And when the process of digestion slows down, you stay full for long. So it helps to increase the satiety. You stay full, you stay satisfied for long. और जब carbohydrate ही आपने कम कर दिया, आप satisfied ही नहीं हो रहे, तो eventually एक तो short term आपका disadvantage होगा, like there'll be mood swing, there will be cravings because your body is just not satisfied, it's just not getting enough. Like क्या किया है मेरे साथ? Cravings होंगी और आपकी sleep deprivation होगी. In the short term you'll have constipation because there's fiber missing in the diet, and in the long term that constipation would increase the chances of colorectal cancers. So things are disastrous to the body. बाज़गा कीटो को तो आपने बड़ा सा उसके ऊपर कांटा लगा दिया. अब अगली डाइट जो कि बहुत पॉपुलर हुई थी वेट लॉस के अंदर, एटकिंस, एंड इट स्टिल इज रादर पॉपुलर बिकॉज उसकी बार्स में अभी भी सुपरमार्केट में देखती हूँ जिसके ऊपर एटकिंस का ए बना होता है. वो क्या डाइट है और इज इट गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर यू?
So Atkins diet is another kind of fat diet, and it follows the same principle of weight loss as a keto diet does. That is, it is again a low carb and a high fat diet. Okay. High fat? But, yes. low carb high fat diet. And in जैसे Atkins, जैसे keto में आप प्रोटीन कम लेते हैं, तो in Atkins is a little less restrictive compared to keto, that you can take as much protein as you like. But then again it's following the same principle, low कार्बोहाइड्रेट की वजह से फैट बर्न होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस होता है और बॉडी कीटोसिस में चली जाती है. अगेन द प्रॉब्लम विद बोथ दीज डाइट्स आर कि ये सस्टेनेबल नहीं है. मतलब आप कितने अरसे तक कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, एंड वंस यू स्टॉप द डाइट से आफ्टर 1 month 2 months व्हाटएवर द पीरियड इज, देन यू क्रेव फॉर कार्बोहाइड्रेट. योर बॉडी इज नॉट मेड कि इस तरह से कि आप कार्बोहाइड्रेट ना लें, एंड व्हेन यू क्रेव फॉर कार्बोहाइड्रेट यू बिंज ईट एंड देन ऑल द वेट कम्स बैक अगेन. सो अ डाइट नीड्स टू बी सस्टेनेबल, यू सी. सो एनी डाइट विच इज़ नॉट सस्टेनेबल इज़ नो यूज एट ऑल. ज़बरदस्त. अच्छा, अगली जो डाइट है जिसके बारे में बड़ा आजकल सुनने में आ रहा है, इज़ अ मेडिटेरेनियन डाइट. नाउ माई आर्ग्यूमेंट हैज़ बिन कि हम लोग मेडिटेरेनियन कंट्री नहीं हैं, बट मेडिटेरेनियन डाइट है क्या, आप ज़रा बताइए. Achha, although I do not recommend any diet at all, it's all about healthy eating and living healthy. So, but Mediterranean diet is a little, I would say, the least restrictive of all the diets. It's a plant-based diet. Again, it's based on the traditional food eaten by the people living along the Mediterranean coast. Italy हो गया, Greece हो गया. तो वो बिलीव करते हैं कि आप अपनी डाइट में एडेड शुगर, प्रोसेस्ड फूड, फ्रोज़न फूड, बटर और कॉर्न ऑयल, ये सब आप नहीं ऐड करें, जो कि अच्छी बात है. बट दे टेल यू, एंड बेसिकली ऑलिव ऑयल, यूजिंग ऑलिव ऑयल इज़ द हॉल मार्क ऑफ मेडिटेरेनियन डाइट. तो मैं कहती हूँ कि यू कैन नॉट, सिंस यू डोंट लिव इन दैट एरा, यू नो, since you have tasted all the things like cakes and pastries and so many types of desserts, you cannot possibly stay away from them. You cannot avoid them completely, because then again it would not be sustainable, you know. आप किसी घर पे चाय पे जाएंगे, ये सब चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं. Added sugar हो गया, processed food, they're not good, but you cannot completely avoid it. So I would say yes, you know, limit it, but not avoid it altogether. बट तो मेडिटेरेनियन डाइट इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं है. कार्बोहाइड्रेट खाने देते हैं जी, कि रोटी खा लें, ब्रेड खा लें, बिल्कुल, ब्रेड खा लें, राइस, पास्ता. अच्छा, और एक और डाइट विच आई एम बीन रियली कंफ्यूज अबाउट इज पैलियो डाइट. ये क्या होती है? अच्छा, पैलियो डाइट ये होता है कि जो पुराने ज़माने में केवमैन होते थे, बेसिकली अ केवमैन डाइट, तो दे यूज टू यू नो ऑब्वियसली एक्वायर, आई मीन गेट फूड वाया डायरेक्टली हंटिंग या गैदरिंग. तो वो कहते हैं कि आप वही चीज़ खाएं जो हंटिंग और गैदरिंग से उस ज़माने में लोग खाते थे. लाइक यू हंट फॉर मीट, तो यू आर अलाउड टू ईट लीन मीट एंड एग्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बट यू आर नॉट अलाउड टू ईट थिंग्स दैट हैव बीन इवॉल्व्ड और यू नो ओवर टाइम. जैसे फैक्ट्री मेड थिंग, ब्रेड ना खाएं आप, मिल्क ना पिएं आप. तो अगेन नॉन सस्टेनेबल होती है. इन द लॉन्ग रन आप एक फूड ग्रुप को इतना अवॉइड कर देंगे तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी में. मिल्क नहीं पिएंगे, योगर्ट नहीं खाएंगे आप, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी हो जाएगी, बोन मास डिक्रीज हो जाएगा, बोन फ्रैक्चर हो जाएगा. सो यू नो देयर इज नो पॉइंट. All these diets are just not sustainable. And my absolute last one is के intermittent fasting. बड़ा आजकल इसका ये कीवर्ड बना हुआ है. मैं तो intermittent fasting कहती हूँ 18 घंटे की, कोई कहता है मैं 16 घंटे की. मैं उन लोगों को देख रही होती हूँ कि आप 16 घंटे 18 घंटे, मतलब मैं liquid fast पे हूँ. That's another one that I didn't even know there was a word that existed. Liquid fast. मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है? You can drink a liquid or you cannot not drink a liquid. Like what's going on here? What is it? So basically, intermittent fasting ये होता है कि your eating pattern cycles between periods of fasting and eating. तो उनका वो है कि आप 16-8 करें. जैसे 16 आवर का आपका फास्टिंग विंडो हो और 8 आवर्स का आपका ईटिंग विंडो हो, और उसी 8 घंटे में आपको जो खाना है खा लें. 16 आवर्स आप रहने दें. अब इससे क्या होता है उरूज के 16 आवर्स, फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर डिनर 8 o'clock in the morning and you are a working person and you start your work 8 in the morning. ओके, सो आप 8 बजे अगर नहीं नाश्ता करेंगे और आप जाके 12-1 बजे खाएंगे, तो सबसे पहले आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट नहीं मिलेगा. आपने नाश्ता नहीं किया, यू ऑब्वियसली फील डाउन एंड नॉट एक्टिव एंड कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क. एंड व्हेन वो टाइम आता है जब 12-1 बजता है और आपके खाने का टाइम हो जाता है, तो यू बिंज ईट एंड यू एंड अप ईटिंग द सेम अमाउंट.
यू नो जो आपने कट करना चाहा कैलोरीज में, यू ऑब्वियसली अ ह्यूमन बीइंग, यू एंड अप ईटिंग द सेम अमाउंट ऑफ फूड, तो अगेन नॉट सस्टेनेबल। मुझे लगता है कि वैसे मैं विदाउट ट्राइंग आई थिंक आई डू दिस बिकॉज आई ईट इन द मॉर्निंग, I eat at 8 when I come to work, and I have my breakfast, lunch at about 12, and then I eat my dinner at about 4 or 5. So am I intermittent fasting? Look, actually 12 to 14 hours मुझे लगता है ठीक है, 16 hours is a little too much. अच्छा हाँ, 16 I घंटे recommend कि 12 घंटे तक तो आप ना खाएं जनरली भी, अगर आप 12 घंटे आप फास्टिंग विंडो रखें। If you can extend it up to 14 hours, well and good, it will help your weight loss, and again जब कार्बोहाइड्रेट इतनी देर बॉडी में नहीं जाएगा तो कीटोसिस हो जाएगा। और ये क्या होता है बाज़गा कि लिक्विड फास्ट, मतलब इसका मतलब क्या होता है? डिटॉक्स वाटर लोग पी लेते हैं। अब डिटॉक्स वाटर का वो होता है कि आपने कहा मैं डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, तो डिटॉक्स वाटर का क्या होता है कि इट क्लेम्स दैट इट फ्लशेस ऑफ द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, वेराज बॉडी का अपना मैकेनिज्म है, किडनीज फ्लश ऑफ द टॉक्सिन्स। एंड डिटॉक्स वाटर चलें, अगर कुछ लोग होते हैं ना उनको पानी नहीं पीना होता है, अब पानी नहीं पीना होता है तो सही है डिटॉक्स वाटर, इफ़ यू फाइंड लाइक चार्मिंग बॉटल्स एंड जिम बॉटल्स में आप डिटॉक्स वाटर भर के जा रहे हैं, तो आप उस बहाने अगर 8 ग्लास पानी पी लेते हैं तो वेल एंड गुड। बट ऑब्वियसली व्हेन यू ईट होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज वे बेटर देन पुटिंग इट इन द वाटर एंड ड्रिंकिंग इट। उससे ज़्यादा आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे अगर आप होल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाओगे। तो मतलब वो जो लेमन स्लाइसेस डाल रहे होते हैं पानियों के अंदर और मिंट के पत्ते डाल रहे होते हैं, दिस इज माय डिटॉक्स वाटर। उससे बेहतर ये कि पुदीना खा लें। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली, होल फ्रूट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होंगे। अच्छा, दूसरा मुझे बाज़गा ये बताएं कि आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ पीपल लाइक नाउ इट्स अनदर थिंग कि प्रोबायोटिक मैंने अपनी डाइट में डालना है, इट्स बिकम लाइक अ कैच फ्रेज ऑलमोस्ट। केफिर, जिसके ये वो फूड आइटम्स थे जो कि आज से 5 साल पहले इनके नाम भी नहीं लोगों को पता थे, बट नाउ दे बिकम सुपर बिग। ग्रीक योगर्ट, केफिर, कंबूचा, किमची, मतलब ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, आई एम जस्ट लाइक अच्छा, तो क्या प्रोबायोटिक हम लोग वैसे नहीं खा रहे? प्रोबायोटिक्स वैसे ही खा रहे हैं, एज लॉन्ग एज योर डाइट इज न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस, यू आर हैविंग प्रोबायोटिक्स। योगर्ट में योगर्ट इज फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स, एंड ग्रीक योगर्ट yes even better, but why do you want to spend so much money? Yogurt also has probiotics, right? And your body has natural probiotics. अगर आप अच्छा खा रहे होंगे वैसे भी तो वो नेचुरल प्रोबायोटिक्स बॉडी में रहेगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में। आपको इतना अलग से टैबलेट्स के फॉर्म में और इतना एक्सपेंसिव खर्च करने की ज़रूरत है नहीं, अब मुझको ये बताएं कि करना क्या है? हम लोग तो दाल, सब्जी, चावल, सालन, रोटी ये खाने वाले लोग हैं। ओकेजनल आलू गोश्त बन जाता है, अंडे आलू बन जाते हैं। इज़ दैट अ हेल्दी डाइट? देखो, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है ना वो बहुत हेल्दी है, तो आप अगर मतलब आई डिडंट मीन पाया निहारी राइट, बट ट्रेडिशनल हमारे पास इतनी सारी सब्जियां, हमारा ट्रेडिशन यही है कि पाया निहारी इज अ ओकेजनल फूड। बिल्कुल, इट शुड बी दैट, रोज का खाना नहीं है। दैट यू शुड, आई वुड से कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें 12 to 14 आवर्स तक, एंड इन द ईटिंग विंडो ईट अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ 3 meals and 1 snack, healthy snack, and do portion control. Eat everything. Look, in medical science, Uruj, there's a phenomena called habituation. That means it says that the more exposure your body has to a variety of different kind of food, the less interesting and appealing the food will become. अगर आपने अपने बॉडी को डिप्राइव किया है कि मैं ये चॉकलेट नहीं खाऊंगी, तो आप इवेंचुअली वो आपको हर वक्त उस चॉकलेट की याद आती रहेगी। So you should include, I'm saying, include a small quantity of dessert, maybe quality street size chocolate in everyday meal, and eat it, I would say eat it immediately after dinner या after lunch, क्योंकि जब आपका पेट भरा हुआ है ना तो आपको वो छोटा अमाउंट सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन अगर आपने गैप दिया और आपने सोचा जब मुझे भूख लगेगी तब मैं चॉकलेट खाऊंगी, तो फिर आप ज़्यादा खाएंगे। Of course. तो when your tummy is satisfied with good food, good meal, eat a dessert, small quantity, केक है तो आप 1 tablespoon ले लें, 2 tablespoon लें, just to satisfy your food craving. That you don't keep thinking about it कि मैं ये avoid कर रही हूँ। No food should be avoided or strictly excluded from the diet. अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे हमारे यहाँ लोग जो हैं वो हेल्दी ईटिंग को समझते हैं कि एवोकाडो खाना है, ब्लूबेरी खाना है, और ये सारी और हेल्दी ईटिंग देन बिकम्स एक्सपेंसिव बिकॉज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आना चाहिए,
तो फलाना आना चाहिए और ऑर्गेनिक दिस एंड ऑर्गेनिक दैट, डू यू थिंक दैट दैट्स समथिंग वी शुड सब्सक्राइब टू? Not at all. Healthy eating should not be considered as expensive at all. Yeah, it can be difficult for you to change your lifestyle altogether to implement it so that all the family members are following it. It can be difficult, but not expensive at all. For example, आप breakfast कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए healthy के लिए? आप अंडा खा लें. You know, you can have a hard-boiled egg or a fried egg in a small quantity of oil, and you can have one brown bread slice with it. थोड़े आप nuts include कर लें. अब nuts में क्या होता है? Although the nuts have got a lot of nutrients in them, but people are not supposed to go nuts over nuts. यूं नहीं उठाना है, यूं उठाना है. You know, 7-8 दाने होते हैं आमंड के, या अगर आप walnut खा रहे हैं तो you can have like 2 whole walnuts in a day. मॉडरेशन रखें. फिर आपने लंच खाया तो आपके पास पाकिस्तान में कितनी सारी सब्जियां और दाल, दे आर सो फ्री अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल एवरीवेयर. देन यू कैन गो फॉर, अगर आप मीट आप खा रहे हैं तो आप, फिश इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ मीट. इट इज़ द प्योरेस्ट सोर्स ऑफ मीट दीज डेज. इट्स रिच इन omega-3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ईजिली अवेलेबल. फिश वाला आ जाता है आपके घर, डिलीवर कर देता है. आजकल तो फूड डिलीवरी इज सो easy, absolutely. So it shouldn't be expensive at all. Why do you want to go for expensive things, for expensive healthy options? Why not the cheaper ones? हाँ, कि मैं मतलब माइक्रो ग्रीन्स खाना है और Exactly. एवोकाडो खाना है, नहीं खाएं भाई. एस्पैरेगस आपके मुल्क में नहीं उगती है, इम्पोर्ट आती है. मुझे ये बताएं बाज़गा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ब्लैक कॉफ़ी एज एन एपेटाइट सप्रेसेंट पीती हूँ या पीता हूँ, कि मैं काली कॉफ़ी की इतनी कब भड़काते हैं लोग इस चक्कर में कि इट्स एन एपेटाइट सप्रेसेंट एंड इट विल हेल्प मी लूज वेट. इज़ दैट ट्रू और नॉट? How will it help you lose weight? अब आप इतनी काली काली कॉफ़ी पी रहे हैं 4-5 चम्मच डाल के. पीपल क्लेम के इट्स लाइक अ वेकनिंग अप फॉर मी. आई डोंट वेक अप, माई आईज, मेरी आंखें नहीं खुलती जब तक मैं कॉफ़ी ना पी लूँ. बट देन इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर बॉडी हैबिचुएशन. यू नो, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग टू अ हैबिट ऑफ सच थिंग्स. आप ना पिएं, आप रिस्ट्रिक्ट करें. अगर आप कॉफ़ी, अब यू वीन इट ऑफ योर डाइट. आप आहिस्ता आहिस्ता करें. जब आप 4 टेबल, आई हैव सीन पीपल ड्रिंकिंग लाइक पुटिंग 4 tablespoons of coffee grains in their coffee and drinking it. So slowly wean it off. And it has no role. अगर आप चाहेंगे, अगर आप जैसे यूजली लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग जब करते हैं तो नॉन फास्टिंग विंडो में अगर उनको बहुत दिल हो रहा है तो बहुत क्रेविंग होती है तो वो पी लेते हैं. 1 कप 2 कप, दैट्स इट. यू नो, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा ना पिए. मॉडरेशन इन एवरीथिंग. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सारे की सारी कहानी को सम अप करें तो आप क्या रेकमेंड करेंगी? देखिए, फ़ैट डाइट्स, अगेन आई वुड से, जब भी आप कोई फ़ैट डाइट फॉलो करेंगे, दी जस्ट ट्रेंडी वेट लॉस डाइट जो इवेंचुअली आपको कोई एक तो शॉर्ट टर्म आपका प्रॉब्लम्स होंगे क्योंकि आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट डिप्राइव्ड हो जाएगी. दूसरा, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं फ़ैट डाइट के साथ. न्यूट्रिएंट डिप्राइव, आपकी बॉडी जिस न्यूट्रिएंट से डिप्राइव होगी उसका शॉर्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा. एंड सेकेंडली, दे आर नॉट सस्टेनेबल. तो अगर कोई चीज़ सस्टेनेबल ही नहीं है, सस्टेनेबल का मतलब है कि लंबा नहीं चल सकती है, आप कितनी दिन तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, इवेंचुअली आप बिंज ईट, क्रेविंग करेंगे, वापस वेट आ जाएगा. तो आप एक मॉडरेशन फॉलो करें. आप 3 मील लें, नॉर्मल अमाउंट, पोर्शन कंट्रोल. एक नॉर्मल इंसान के लिए, मतलब योर बॉडी शुड टेल यू व्हेन यू आर फुल. यू शुड अंडरस्टैंड कि जब आप फुल हो और आप एक्सीड नहीं करो उस अमाउंट को. यू शुड इवन टीच योर चिल्ड्रन कि यू हैव गॉट अ फुल फीलिंग आगे, लीव द मॉर्सल्स इन द प्लेट. यू डोंट हैव टू फिनिश इट. सॉरी, आई माइट बी गोइंग अगेंस्ट अ लॉट ऑफ. नहीं, प्लेट में डालें, कम डालें, दूसरी दफा भी डल सकता है दोस्त. मतलब इतना सारा नहीं पेट भरो. तो अगर बच्चों को भी बोलें कि अगर आपका पेट भर गया तो लीव इट. सही है. You don't have to stuff yourself with it. Once your body indicates that your body is full, that's it. Stop eating. ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच बाज़गा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया.